رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ گلا خشک ہونے کی وجہ سے میری نیند کھل گئی۔ چارپائی پہ اپنے سرہانے کے ساتھ دیکھا تو پانی والی بوتل نہیں پڑی تھی۔ میری عادت تھی میں ہر روز رات کو پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھ لیتی تھی کیونکہ مجھے پیاس لگتی تھی، لیکن آج میں شاید لانا بھول گئی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، ہم سب باہر ہی سوئے ہوئے تھے۔ گھر میں ہم صرف 4 لوگ ہی تھے۔ ہمارا صحن کافی بڑا تھا، اسی لیے آسانی سے سوتے تھے۔ میں آہستہ سے چارپائی سے اٹھی اور بغیر کوئی آواز کیے ایک ایک قدم لیتی کچن کی طرف چل دی۔ فریج سے میں نے پانی نکالا اور 2 گلاس کٹک لیے، لیکن جب میں کچن کی لائٹ بند کر کے آنے ہی لگی تھی تو اماں کو چارپائی پہ سوتا نہ دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ ہمارا صحن بڑا تھا، اسی لیے کچن والی سائڈ پہ میری ساس اور نمرا سوتی تھی اور اس سے تھوڑا سا دور میں اپنے شوہر کے ساتھ سوتی تھی۔ اب جب میں کچن کے ساتھ سے ہو کے جا رہی تھی تو میں چارپائی پہ دیکھ چکی تھی کہ میری ساس چارپائی پہ نہیں سو رہی تھی، بلکہ صرف نمرا ہی سوئی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر ساسو ماں کہاں گئی ہے۔ میری نظر میری ساس کے کمرے پہ پڑی تو ان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ نہ جانے رات کے اس وقت وہ کمرے میں بیٹھی کیا کر رہی ہے۔ میں آہستہ آہستہ سے چلتی اب اپنی ساس کے کمرے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے ہلکا سا جھانک کے دیکھا تو میری ساس مصلی بچھائے زمین پہ بیٹھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے دعا کر رہی تھی۔ یا اللہ میری بہو کی گود بھی ہری کر دے۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہے، تو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو وہ بھی جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اے اللہ اپنی رحمت فرما اور میرے بیٹے کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ میری آنکھیں ترس گئی ہیں اپنے بچے کی اولاد دیکھنے کو۔ یا اللہ تو ہی اب رحم فرما، بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ میں نے کان لگا کے ان کی دعا سننے کی کوشش کی تو یہ سن کے میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ رات کے اس پہر بیٹھی میرے حمل کی دعائیں کر رہی تھی۔ میری ساس تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ شاید حمل ہو ہی نہیں رہا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ میں ابھی وہیں پر کھڑی اپنی ساس کو کھڑکی سے جھانک جھانک کے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری ساس تسبیح اٹھا کے بیٹھ گئیں اور کچھ پڑھنے لگ گئیں۔ مجھے اب آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ صرف اپنی ساس کے لیے لب ہلتے ہوئے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ میں آہستہ سے بغیر کوئی شور کیے ایک ایک قدم لیتی آ کر اپنی چارپائی پہ لیٹ گئی۔ چاندنی رات تھی، مجھے شک تھا کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ میں چارپائی پہ آ کے لیٹ تو چکی تھی، لیکن اب مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ آخر میری ساس کو ہو کیا گیا ہے، مجھ سے زیادہ آخر انہیں کیوں جلدی ہے۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں ماں بن جاؤں، لیکن میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں آج کے زمانے کی ایک ماڈرن لڑکی تھی اور میں اچھے سے جانتی تھی کہ اگر میں حاملہ ہو گئی تو پھر میرا جسم بھینسے کی طرح ہو جائے گا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے لیے میرا فگر، میرا وزن اور میری خوبصورتی بہت میٹر کرتے تھے۔ اسی لیے ہی میں نے شادی کی رات ہی حبیب سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے کچھ وقت دے۔ حبیب اور میری بظاہر تو ارینج میرج تھی، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ یہ بات ہمارے خاندان میں کوئی نہیں جانتا تھا سوائے میرے اور حبیب کے۔ ہم دونوں شادی سے پہلے چھپ چھپ کے باتیں بھی کرتے تھے، لیکن آج تک ہمارا راز فاش نہیں ہوا تھا، اور اب تو ہماری شادی بھی ہو گئی تھی۔ اب کچھ چھپانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ حبیب میری بات اچھے سے سمجھتا تھا۔ آج بھی مجھے وہ شادی کی رات یاد ہے جب میں نے اس بارے میں حبیب سے ذکر کیا تھا اور حبیب نے میری ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اس دن مجھے حبیب پہ بہت ہی پیار آیا کیونکہ وہ دوسرے مردوں کی طرح جسم کے پجاری نہیں تھے۔ میں کمرے میں گھونگھٹ کر کے بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے کمرے میں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن ابھی حبیب کمرے میں نہیں آئے تھے۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ حبیب اندر داخل ہوئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آ کے بیٹھے تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا اور میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ میں ابھی بھی گھونگھٹ میں بیٹھی تھی اور حبیب میرے ساتھ بیڈ پہ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے اپنی جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا لیں۔ سمیرہ، تم نہیں جانتی کہ آج میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے بیٹھا دیکھ کے کتنا خوش ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ شاید ہم دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو پائیں گے، لیکن شاید ہماری قسمت کے پیچھے اللہ کی مرضی بھی تھی جس نے ہم دونوں کو ملا دیا ہے۔ آج تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تم پر سے نظریں ہٹانے کا۔ دل کر رہا ہے پوری رات تمہیں ایسے ہی دیکھتا رہوں اور رات کبھی بھی ختم نہ ہو۔ حبیب میری تعریف پہ تعریف کیے جا رہے تھے اور میں شرم سے کشمیری سیب کی طرح لال ہوتی جا رہی تھی۔ ارے ارے سمیرہ بیگم، دیکھو تو صحیح اپنا چہرہ کیسے لال ہو گیا ہے، مطلب کہ شرمایا جا رہا ہے۔ حبیب مجھے تنگ کرنے کے لیے ہی یہ سب کہہ رہے تھے۔ حبیب نے یہ کہا تو میرے چہرے پر دھیمی سی مسکان آ گئی۔
वैसे समीरा, जितना तुम शादी के बाद शर्मा रही हो इतना तो शादी से पहले भी नहीं शर्माती थी। अब तुम्हारी नजरें ही नहीं उठ रही। हबीब ने कहा तो मेरी हंसी ही निकल गई। मैंने खुद पे बहुत कंट्रोल किया था लेकिन मैं कामयाब नहीं रही। हबीब, आपको क्या हो गया है? आप मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? मैंने धीमे से लहजे में बस इतना ही कहा और फिर से नजरें झुका ली। हबीब का हाथ जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ बढ़ने लगा तो मुझे अजीब सी उलझन होने लगी। मेरे जहन में वो सारे ख्यालात आ रहे थे लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आखिर हबीब को कैसे बताऊं। क्या बात है समीरा, कोई मसला है क्या? जैसे ही हबीब ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने उनका हाथ पीछे ही रोक लिया। वो अब हैरान हो रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं उन्हें कैसे बताऊं, लेकिन फिर हिम्मत करके मैंने अपनी जुबान खोल ही दी। हबीब, मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैंने ये कहा तो वो हैरत से मुझे देखने लगे। हाँ हाँ समीरा, जो बात करनी है तुम खुल के करो, डर क्यों रही हो? मैंने हबीब को एतमाद में लिया तो मुझे कुछ इत्मीनान मिला। अब मैं सोच चुकी थी कि मैं खुल के अपनी बात हबीब को बता दूंगी। हबीब बिल्कुल मुतवज्जे होकर मुझे ही देख रहे थे। हबीब, बात दरअसल ये थी कि मैं अभी फैमिली नहीं बढ़ाना चाहती। मुझे कुछ वक्त चाहिए। आप मेरी बात समझ तो रहे हैं ना? अभी तो मेरी उम्र ही इतनी नहीं कि मैं ये बोझ उठा सकूं। मैंने बहुत ही धीमे लहजे में नज़रें झुका के ये कहा। हबीब तो बिल्कुल ही खामोश हो गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला और खामोशी से मेरी बात सुनते रहे। हबीब, मैं जानती हूँ कि आपने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है और आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं भी तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे अज़दवाजी ताल्लुक़ बनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं अभी खुद को इसके लिए तैयार नहीं समझ रही। मैं समझती हूँ कि मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है कि मैं बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकूँ। मैंने बड़ी तफसील से और बड़े प्यार से हबीब को समझाया। समीरा, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर उनकी बात हमारे लिए पत्थर पे लकीर होती है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे इस बारे में कोई एतराज़ नहीं। तुम जितना वक्त लेना चाहो ले सकती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने शादी तुमसे तुम्हारा जिस्म हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह भी हासिल करने के लिए की थी। इसलिए तुम जितना चाहो वक्त ले सकती हो। हबीब ने कहा तो मुझे उन पे बहुत ही प्यार आया। वो वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, इसीलिए तो मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। हबीब मेरे चचाजाद थे और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मैं अब खुशगवार माजी से हाल में आ चुकी थी। अभी भी मुझे नींद नहीं आई थी। सोचो ही सोचो में ना जाने कितना वक्त गुजर गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने आहिस्ता से सर को मोड़ के देखा तो मेरी सास कमरे से निकल के चारपाई की तरफ आ रही थी। वो उस वक्त अब अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। ना जाने वो इतना वक्त क्या पढ़ती रहती थी। उस वक्त मुझे नींद आ गई, लेकिन सुबह मेरी नींद आज़ानों के वक्त ही खुल गई। दूर दूर से आज़ानें हो रही थीं। जैसे ही आज़ानें मेरे कानों में पड़ी तो मैं फ़ौरन से उठी और बाथरूम में घुस गई। जब बाथरूम से बाहर निकली तो मेरी सास भी नमाज के लिए उठ चुकी थी। मैंने वुज़ू किया और बाहर सहन में ही जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ के मैंने कुछ देर अल्लाह से दुआएं की, जिक्र अस्कार किए, फिर जाए नमाज फोल्ड करके चारपाई पे ही रख दी और किचन में आ गई। मेरी आदत थी कि मैं फजर की नमाज पढ़ के ही आटा गूंद देती थी, इसीलिए मैं आटा गूंदने के लिए किचन में खड़ी थी। मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी क्योंकि अभी मैंने कमरे की सफाई भी करनी थी। मेरी यही रूटीन थी। मैं सुबह सुबह ही आटा गूंद के फिर कमरे की सफाई कर लेती। जब कमरे की सफाई हो जाती तो फिर मैं नाश्ता बनाती। इतने में हबीब के स्कूल जाने का वक्त हो जाता। हबीब एक सरकारी टीचर थे और सुबह 8 बजे उनका स्कूल लगता था। जल्दी से आटा गूंदने के बाद मैं कमरे में आ गई और झाड़ू उठा लिया। झाड़ू देने के बाद मैंने पोछा भी लगा दिया था, क्योंकि कल भी मैंने पोछा नहीं लगाया था। कल मेरी आंख ज़रा देर से खुली थी और मेरी सारी रूटीन ही दरहम बरहम हो गई थी। अपने कमरे की अच्छी से सफाई करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई और हबीब के लिए नाश्ता बनाने लगी। हबीब और निम्रा दोनों स्कूल जाते थे। हबीब ने तो नौकरी पे जाना होता था लेकिन निम्रा अभी पढ़ रही थी। फ्रिज से मैंने रात का सालन और दूध निकाला। सालन मैंने गर्म करना खड़ा कर दिया था और दूसरे चूल्हे पे मैंने रोटी भी साथ साथ डालना शुरू कर दी। हबीब तैयार हो रहे थे और अब नाश्ता भी तकरीबन तैयार हो चुका था। जैसे ही मैं नाश्ता तैयार करके कमरे में गई तो हबीब कंघा कर रहे थे। हबीब, आज आप लेट हो गए हैं क्या? नाश्ता मैं बना चुकी हूँ, 7:45 हो रहे हैं, जल्दी से नाश्ता कर लें। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता दे के फिर से किचन में आ गई, क्योंकि अभी मैंने चाय भी बनानी थी और हबीब की आदत थी वो नाश्ता करने के फ़ौरन बाद चाय भी ज़रूर पी के जाते थे। मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। चाय उबल रही थी और मैं खाना निम्रा के कमरे में उसे दे भी आई। वो भी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। निम्रा को खाना देने के बाद मैं किचन में आई। चाय तकरीबन बन चुकी थी। चाय मैंने प्याली में डाली और कमरे में पहुंच गई, लेकिन हबीब ने जैसे ही चाय को देखा तो हाथ के इशारे से मना करने लगे।
ان کے मुँह में निवाला था और वो बोल नहीं पा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने निवाला ख़त्म किया तो कहने लगे कि चाय पीने का वक़्त नहीं है। वो जल्दी-जल्दी नाश्ता कर रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में वो घर से निकल गए। हबीब के लिए जो चाय मैंने बनाई थी वो मैंने खुद ही बैठ के पी ली और कुछ देर बाद बेड पे बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। मेरी सास और मैं थोड़ा लेट ही खाना खाते थे, लेकिन हबीब और निम्रा के लिए मैं जल्दी नाश्ता बना देती थी, क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना होता था। निम्रा हबीब के साथ ही बाइक पे जाती थी। दोनों का एक ही टाइम था घर से निकलने का। मोबाइल देखते देखते तो मुझे वक्त का अंदाज़ा ही ना हुआ। मैंने जैसे ही नज़र ऊपर उठा के देखी तो घड़ी पे पूरे 10 बज रहे थे। 2 घंटे हो गए थे मुझे यहाँ पे मोबाइल चलाते हुए। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर ये 2 घंटे इतनी जल्दी कैसे गुजर गए। मैंने जल्दी से मोबाइल बेड पे फेंका और किचन में आ गई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी सास कमरे से बाहर ना आ गई हों। मेरी सास अच्छी तो थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो कि मैंने खाना बनाने में देर क्यों कर दी। लेकिन मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास के कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था। इसका मतलब था कि वो अभी भी अपने कमरे में ही बैठी थी। मेरी सास की आदत थी, वो नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह 9-10 बजे तक ऐसे ही कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी। इसीलिए हम 10 बजे तक ही खाना खाते थे। मैं किचन में आ गई और जल्दी-जल्दी हाथ चलाने लगी, ताकि वक्त पे खाना बना सकूं। मैं किचन में खाना बना ही रही थी कि अचानक से मेरी सास भी किचन में आ गई। समीरा बेटा, खाना बन गया है, तो मुझे बाहर ही दे दो। वो मुझे खाने का कह के बाहर जा चुकी थी। बाहर हमारे सहन में एक छोटा सा नीम का दरख्त था, इसीलिए ही हम 9-10 बजे तक उसकी छांव में बैठे रहते थे। जब गर्मी ज़्यादा होने लगती थी तो हर कोई अपने अपने कमरों में चला जाता था। खाना बना तो मैं अपना और अपनी सास का खाना लेके किचन से बाहर निकल आई, ताकि खाना खा के ही बर्तन वगैरह धोंगी। नीम के दरख्त के नीचे 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। मैंने सास को खाना दिया और खुद भी साथ बैठ गई। हम दोनों सास बहू खाना खा रहे थे। मेरी सास बहुत अच्छी थीं और बहुत दीनदार भी। उन्होंने कभी भी मुझे बिला वजह के तंज नहीं किए थे, जैसे आम तौर पर सासें बहुओं को देती हैं। मैंने उन्हें कभी मौका ही नहीं दिया था, बल्कि वक्त से पहले ही सब कुछ कर देती थी, ताकि उन्हें कुछ कहना न पड़े। मेरी माँ ने ही मुझे ये सिखाया था। मेरी सास को और तो कोई शिकायत नहीं थी मुझसे, लेकिन उन्हें एक शिकायत ज़रूर थी, और वो थी मेरी सूनी गोद की। मेरी सास खुल्लम खुल्ला तो मुझे नहीं कहती थी, लेकिन दबे दबे लफ्ज़ों में ज़रूर कहती थी कि मैं अभी तक हामला क्यों नहीं हुई। मैं भी कहीं अनसुनी कर देती। समीरा बेटा, मुझे तो तुम्हारा माजरा समझ ही नहीं आता, न जाने क्या मसला है। हम दोनों सास बहू बिल्कुल खामोशी से खाना खा रहे थे कि अचानक से मेरी सास ने खामोशी का गला घोंट दिया और मुझसे वही सवाल कर दिया जो मैं सुनना नहीं चाहती थी। अंदर ही अंदर तो मैं जानती थी कि वो किस बारे में सवाल कर रही हैं, लेकिन मैंने अपने चेहरे से ऐसा बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं किया और मैं बिल्कुल ही भोली बन गई। अम्मा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? कौन सा मसला? मैंने भोली सूरत बना के अपनी सास से पूछा तो वो मुझे हैरत से देखने लगी। अरे बेटा, यही ना कि तुम्हारी शादी को पूरा 1.5 साल हो गया है, तुम अभी तक पेट से नहीं हुई। न जाने क्या मसला है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अब मेरी सास ने खुल्लम खुल्ला मुझसे बात कर दी। मैं खामोशी से सर झुकाए बैठी रही, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल देती तो फिर उन्हें बुरा लग जाता। अम्मी, आप फ़िक्र क्यों करती हैं? खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। अल्लाह चाहेगा तो हमें ज़रूर औलाद अता फ़रमाएगा। अब ये हमारे अपने तो बस में नहीं है ना। हमें अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। वो ज़रूर एक दिन हमारी भी दुआ सुनेगा। मैंने अपने चेहरे पे आए सारे तासुरात को एक तरफ किया और बड़ी पाक साफ सूरत बनाते हुए मासूम से लहजे में ये कहा, क्योंकि मैं ये ज़ाहिर करना चाहती थी कि खुदा की तरफ से ही देर है। मैं अपनी सास को बिल्कुल भी सच नहीं बताना चाहती थी। शादी को पूरा 1.5 साल हो गया था और मैं उसमें कामयाब भी रही थी। मेरी सास अभी तक ये जान नहीं पाई थी कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है। मैंने हबीब को भी अच्छे से समझा दिया था कि वो कोई भी बात का ज़िक्र अम्मा से ना करें। उन्होंने आज तक अम्मा से इस बारे में कोई भी बात नहीं की थी और ना ही मुझे फ़ोर्स किया था। 1-2 दफ़ा तो उन्होंने दबे-दबे लफ्ज़ों से मुझे कहा था, लेकिन फिर मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी मुँह चिढ़ा के नहीं कहा था। इसीलिए मैं खामोशी से अपना मकसद पूरा कर रही थी। मैं डरती थी उस भैंसे जैसी जिसामत से जो औरतों की बच्चा पैदा करने के बाद हो जाती है। मैं बहुत ही स्लिम, स्मार्ट, खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। मेरे लंबे खूबसूरत बालों की हर कोई तारीफ करता था। मैं जानती थी कि अगर मैं हामला हो गई और बच्चा पैदा कर लिया तो फिर मेरी ये खूबसूरती कहीं की नहीं रहेगी, और ये मुझे मंजूर नहीं था। मैं आज के ज़माने की लड़की थी और अपने आप को शादी के बाद भी मेंटेन रखे हुए थी। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक रही हो, अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह जब चाहे दे, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे महरूम रखे। लेकिन बेटा, सोचने वाली बात तो है ना, हमें तो कुछ ना कुछ मालूम करना चाहिए।
वो अभी भी कह रही थी, लेकिन इस बार मैंने एक लफ्ज़ भी ना बोला और सर झुकाए बैठी रही। आज जाती हूँ शमीम के साथ उसी पीर के पास जिसका वो मुझे बता रही थी। क्या पता वहीं से ही कोई हल हो जाए। मेरी सास ने ये कहा तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे उनकी बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगी, मगर मैं खामोशी से अभी भी अपना खाना खाती रही। खाना खा के मेरी सास वहाँ से जा चुकी थी। जब मैंने अपना खाना खा लिया तो बर्तन उठा के किचन में आ गई। मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। बर्तन वगैरह मैंने धो लिया और किचन भी साफ कर लिया। मेरी कमर दर्द करने लगी। दोपहर भी हो गई। अभी हबीब घर नहीं आए थे, उनके आने में अभी 1 डेढ़ घंटा बाकी था। मैं कमरे में आई और कुछ पल सुकून के गुजारे। यही वक्त मेरे सुकून का होता था जब घर में कोई नहीं होता था और मैं मज़े से जो चाहती वो करती थी। मेरी सास भी अपने कमरे में होती थी और एक छोटी नंद थी जो स्कूल होती। मैं अपने कमरे में आ चुकी थी। अचानक से मुझे ख्याल आया तो मैं उठ के ड्रेसिंग टेबल के पास जा खड़ी हुई। मैंने दराज खोल के देखा तो उसमें एक ब्लीच पड़ी थी। मैंने जल्दी से वो ब्लीच उठाई और बेड पे रख दी। मेरे पास अभी कोई कटोरी नहीं थी जिसमें मैं वो ब्लीच घोलती, इसलिए मैं किचन में गई और एक छोटी सी कटोरी ले आई। मैंने ब्लीच को उस कटोरी में खोला और अपने पाँव और हाथों पे लगा लिया। मैं हफ्ते में 1 2 दफ़ा तो ज़रूर ही ब्लीच करती थी। ये शादी से पहले की ही मेरी आदत थी। मैंने शादी के बाद भी इसे बरकरार रखा हुआ था। मुंह पे भी मैं क्रीम वगैरह लगाती थी। आधा घंटा जब ब्लीच को हो गया तो मैं जाके धो आई और कमरे में मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। मोबाइल देखते हुए तो मुझे वक्त का अंदाज़ा ही ना हुआ और अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घड़ी पे देखा तो हबीब और निम्रा के घर आने का वक्त हो चुका था। मैं जल्दी से दौड़ के कमरे से बाहर निकली और गेट पे पहुंच गई। दरवाज़ा खोला तो हबीब और निम्रा अंदर आ गए। हबीब की कमीज़ पसीने की वजह से उसकी कमर से बिल्कुल चिपकी हुई थी। गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं कमरे में जाने के बजाय सीधा किचन में ही आई। हबीब तो कमरे में गए थे क्योंकि उन्होंने कपड़े तब्दील करने थे। मैं किचन में खड़ी हबीब के लिए ठंडा शरबत बनाने लग गई। वो जब भी स्कूल से आते तो मैं उन्हें सबसे पहले ठंडा शरबत ही बना के देती थी। मैं शरबत कमरे में देने के लिए गई तो हबीब कपड़े तब्दील कर चुके थे। मैं शरबत देते ही फ़ौरन से किचन में आ गई क्योंकि अभी मैंने खाना भी तो बनाना था। हबीब की आदत थी, वो कहते थे कि उन्हें दोपहर में भी ताज़ी रोटी ही चाहिए होती है। मैंने आके चूल्हा जलाया तो ऐसा लगा जैसे पूरे किचन में ही आग लग गई है। एक तो इतनी गर्मी थी और ऊपर से चूल्हा जल रहा था। मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और पहले हबीब को कमरे में दे आई। लेकिन जब हबीब को खाना देने के बाद फिर भी मैं किचन में ही आई क्योंकि अभी मैंने निम्रा को खाना देना था। वो मुझे अपनी छोटी बहनों की तरह ही लगती थी, इसीलिए मैं उसका ख़्याल रखती थी। और वैसे भी वो थी भी तो मेरी छोटी कज़न ही। मैं खाना देने के लिए गई तो वो यूनिफ़ॉर्म तब्दील कर चुकी थी। खाना देख के तो वो कहने लगी कि भाभी आप टाइम पे आई हैं। मुझे वाक़ई बहुत भूख लग रही थी। थोड़ी देर में उसके साथ ही बैठ गई। भाभी आपको पता है, हमें गर्मियों की छुट्टियाँ मिल गई हैं। अब मैं भी आपके साथ काम में हाथ बटाऊँगी। मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसे पूरा दिन घर के काम करती हैं, लेकिन अब मुश्किल वाली कोई बात नहीं, मैं आपका हाथ बटा दिया करूँगी। और मुझे गर्मी की छुट्टियों के बारे में बता रही थी। अरे निम्रा, नहीं नहीं, इतने भी काम नहीं होते, मैं कर लूँगी। अभी तो तुम छोटी हो। मैंने ये कहा तो वो हंसने लगी और कहने लगी, भाभी जान, मैं अभी इतनी भी छोटी नहीं हूँ। मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही हूँ और 10वीं क्लास में पढ़ने वाला कोई छोटा नहीं होता। वह बड़े फ़ख्र से कह रही थी। हाँ, हाँ, भई तुम बड़ी हो, करवा लेना मेरे साथ काम। अब खुश? मैंने उसे चुप कराने के लिए कहा तो वो भी खामोश हो गई। वैसे भाभी अम्मा कहाँ पर हैं? उसने ये कहा तो मुझे बड़ी हैरत हुई। निम्रा, क्या अम्मा घर पे नहीं हैं? मैं उससे सवाल कर रही थी। मेरे सवाल पे तो वो हैरत से मुझे देख रही थी। क्या मतलब भाभी, आपको पता नहीं है कि अम्मा घर पे हैं या नहीं? उसे ये कहा तो मुझे वो बात याद आने लगी जो अम्मा ने सुबह मुझे कही थी। मुझे यकीन तो नहीं था, लेकिन मुझे शक हो रहा था कि शायद वो शमीम खाला के साथ कहीं गई हुई हों। निम्रा, मुझे क्या पता कि वो कहीं गई हैं या नहीं, मैं तो अपने कमरे में थी। हाँ, सुबह वो खाने के वक्त ये कह रही थी कि उन्होंने शमीम खाला के साथ कहीं जाना है। शायद वो वहीं गई हों। मुझे तो वो कुछ भी बता के नहीं गई। मैंने ये कहा और कमरे से बाहर निकल आई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरे जहन में ख्याल आया कि नहा ही लूँ, इसीलिए मैं फ़ौरन से बाथरूम में घुस गई। मेरा पूरा आधा घंटा नहाती रही क्योंकि ठंडे पानी से बाहर निकलने का तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। मैं अब बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। मैं कमरे में आई तो हबीब सो चुके थे। मैं भी आराम से जाके कमरे में लेट गई। मैं भी आराम से जाके कमरे में लेट गई। दोपहर के 2 बज रहे थे, मेरे पास अब कोई काम करने को था नहीं, इसलिए सोचा कि थोड़ा आराम यहीं कर लूँ। लेकिन जब मेरी नींद खुली तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि 3:30 बज रहे थे और नमाज का आखिरी वक्त चल रहा था। उस वक्त तो मैं ये सोच के सोई थी कि कुछ देर आराम करने के बाद उठ जाऊंगी, लेकिन अब जब घड़ी पे ये वक्त देखा तो मैं जल्दी से उठी और वज़ू करके जाए नमाज बिछा दी। वक्त जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। शाम के साए ढले तो अम्मा भी घर वापस आ गई।
मैंने अभी उनसे कुछ भी नहीं पूछा था और ना ही मुझे वक्त मिला था। किचन के कामों में तो मैं बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी। चारपाइयाँ मैं सहन में बिछा चुकी थी और खाना भी बन चुका था। मैं खाना खाते ही फ़ौरन से आके चारपाई पे लेट गई। आज तो मैं पूरा दिन ही घुन चक्कर बनी हुई थी। मुझे नींद भी बहुत जल्दी ही आ गई थी। सुबह जब मेरी नींद खुली तो रोज़ की रूटीन ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने आटा गूँधा और कमरे की सफाई करके फिर से किचन में आ गई और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता वगैरह दे के मैं अब बिल्कुल फ़ारिग हो गई थी। दिन तो सारे ऐसे ही मेरे बोरिंग रूटीन से गुजरते जा रहे थे। सुबह से कब शाम हो जाती पता ही नहीं चलता था। घर के सारे अफराद खाना खा चुके थे, मैं ही बची थी। मैं किचन में बैठ के ही खाना खा रही थी। खाना खा के मैंने बर्तन वगैरह धोए और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई। समीरा बेटा इधर आओ, मेरी ज़रा बात सुन लो। मैं किचन से कमरे में जाने ही लगी कि अचानक से सास के बुलाने पे उनके कमरे की तरफ मुड़ गई। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर वो मुझे इस वक्त क्यों बुला रही हैं। मैं कमरे में गई तो वो जाए नमाज पे बैठी कुछ पढ़ रही थी। उनके एक हाथ में तस्बीह थी और दूसरे हाथ में एक उबला हुआ अंडा जिस पे उन्होंने मेरे सामने ही फूंक मारी थी। ना जाने वो क्या पढ़ पढ़ के उस पे फूंक रही थी। मैं खामोशी से अभी भी बैठी थी। मेरी सास ने अभी मुझे कुछ भी नहीं कहा था। जब उन्होंने अपना दम दरूद पूरा किया तो कहने लगी कि ये अंडा मैं खा लूं। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर ये अंडा कहाँ से आया है और मैं क्यों खाऊं। अम्मी ये किस लिए है। मैंने बड़े आराम से अपनी सास से पूछा तो वो कहने लगी कि बेटा कल शमीम के साथ उस पीर के पास गई थी जिसका मैंने तुम्हें कल बताया था। उन्होंने ही कहा है कि 40 दिन तुम्हें अंडा खिलाऊं और कुछ पढ़ने की चीज़ें भी बताई हैं। उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि 40 दिन में ही इंशाल्लाह से तुम हामला हो जाओगी। मेरी सास ने कहा तो मुझे हैरत का झटका लगा, लेकिन मैंने अपनी सास को कुछ भी ना कहा और वो अंडा उनके हाथ से लेके उनके कमरे से बाहर निकल आई। उनका तो ख्याल था कि शायद मैंने वो अंडा खा लिया, लेकिन मैंने वो अंडा खाया ही नहीं, क्योंकि मैं अभी हामला नहीं होना चाहती थी। मैं सास के कमरे से बाहर निकली तो मेरी नंद भी अपनी चारपाई पे लेटी हुई थी। मेरी सास तो अभी भी अंदर ही तस्बीह वगैरह और वज़ाइफ पढ़ने में मसरूफ़ थी। वो देर से ही कमरे से बाहर निकलती थी। मैंने मौके को गनीमत जाना और जाके निम्रा के पास गई। निम्रा देखो ना, अम्मा ने मेरे लिए अंडा उबाला है, लेकिन अब मैं कैसे खाऊं उसे। अभी तो मैं रोटी खा के आई हूँ। मुझे तो ज़रा भी दिल नहीं कर रहा खाने का। मैंने अम्मा से तो ले लिया है ताकि उन्हें बुरा ना लगे। अगर तुम खाना चाहो तो खा लो। मैंने ये कहा तो उसके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। वो तो अंडे को देख के फौरन ही चारपाई से उठ बैठी और मेरे हाथ से वो अंडा ले लिया। मेरा काम पूरा हो गया था। मैं फौरन से निम्रा की चारपाई से उठी और अपनी चारपाई पे आ गई। मेरा काम हो चुका था। मेरी सास बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि जो अंडा उन्होंने मेरे लिए दम किया है वो मैं नहीं बल्कि उनकी बेटी खा रही है। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। मेरी सास ने तो ये रोज़ का मामूल ही बना लिया था। वो रोज़ रात को इशा के बाद मुझे वो दम किया हुआ अंडा देती और मैं बहाने बहाने से वो अंडा अपनी छोटी नंद को खिला देती। किसी को कोई पता नहीं था कि आगे हमारे साथ होने क्या वाला है। दिन तो जैसे तैसे गुजरते ही चले जा रहे थे। एक दिन सुबह जब खाना वगैरह खा के हम दोनों सास बहू बाहर बैठी ही थी कि अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर सुबह सुबह कौन आ गया है। लेकिन मैं दरवाजे पे गई तो सामने सकीना चची खड़ी थी। उन्हें देख के तो मेरा सारा मूड ही खराब हो गया। वो हमारी मोहल्लेदार थी और बहुत ही चापलूसी वाली थी। हर घर में आग लगाना उनका काम था। अब मुझे शक हो रहा था कि कहीं वो हमारे घर में भी आग लगाने तो नहीं आ गई। लेकिन मैं अभी उन्हें रोक तो नहीं सकती थी क्योंकि वो अब हमारे दरवाजे पे खड़ी थी। मैंने अंदर आने का कहा तो वो अंदर आ गई। मैं उनके लिए ठंडा शरबत बनाने के लिए चली गई और वो मेरी सास के साथ बाहर नीम के दरख्त के नीचे ही बैठ गई। मैं किचन में खड़ी शरबत बना रही थी और मेरी सास और सकीना चची बाहर बैठी बातें कर रही थी। किचन साथ ही था इसीलिए मुझे उनकी बातें कुछ सुनाई दे रही थी। अरे बिल्किस बहन, तेरी बहू तो अभी तक हामला नहीं हुई। शादी को तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। इसने अभी तक घर में कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। मुझे तो लगता है ये बांझ है। जैसे ही ये अल्फाज मेरे कानों में पड़े तो मेरे कानों से गुस्से से धुआं निकलने लगा। मेरा दिल कर रहा था कि यही शरबत जो मैं चची के लिए बना रही हूँ जाके उनके मुंह पे गिरा दूं, मगर ये मैं कर नहीं सकती थी। अब तो मैं और भी तवज्जो से उनकी बातें सुनने लगी। अरे बहन, मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है। संभल जाओ, लड़के की शादी कहीं और करवा लो। ये ना हो कि लड़के की नस्ल ही ना बढ़े और ये बांझ सारी जिंदगी ही तुम्हें पोता पोती ना दे सके। अगर कहो तो बहू ढूंढूं तुम्हारे लिए। सकीना चची ने ये कहा तो मेरा दिल किया कि उन्हें जाके खरी खरी सुना दूं। अब गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बातें ही ऐसी कर रही थीं जिसका डर था वही हुआ। जब वो दरवाजे पे आई थी तो मुझे पहले ही शक हो गया था कि ज़रूर हमारे घर में भी लगाई बुझाई करने आई होंगी। नहीं नहीं सकीना बहन, इसकी ज़रूरत नहीं। समीरा हमारे घर की बच्ची है और वो कोई बांझ नहीं।
मुझे उम्मीद है खैर से उसकी भी औलाद हो जाएगी, और साल 2 साल से क्या फ़र्क पड़ता है। देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के ही देता है। उसके घर देर है, अंधेर नहीं। मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, वो ज़रूर ही मेरे हबीब को भी औलाद अता करेगा। फ़िक्र वाली बात नहीं, मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है। मेरी सास ने ये कहा तो मुझे कुछ सुकून मिला। मुझे हैरत तो हो रही थी कि आखिर वो ऐसी बातें कैसे कर रही हैं, लेकिन मुझे खुशी भी हो रही थी। उन्होंने सकीना चची का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे मुझे दिली सुकून मिला। मैं शरबत बना के अब बाहर आ चुकी थी और सकीना चची को भी दे दिया। वो शरबत पी रही थी और साथ में मुझ पर भी नज़र रखे हुए थी। अब मैं उनके साथ ही बैठ गई ताकि सकीना चची मेरी सास को और वर्गला न सके, और ऐसा ही हुआ। जितनी देर मैं वहाँ बैठी रही, सकीना चची ने एक लफ्ज़ भी मेरे खिलाफ नहीं बोला। वो ऐसी ही थी, हर किसी के मुंह पे उसकी सगी बन जाती थी। जितनी देर मैं उनके पास बैठी रही, वो मुझे दुआएं ही देती रही थी और मुझे प्यार करती रही थी। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। वो अभी भी बैठी थी, घर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब अपने मुंह से तो उन्हें वहाँ से जाने का नहीं कह सकती थी। कुछ देर बैठने के बाद वो खुद ही उठने लगी, क्योंकि उनकी दाल नहीं गली थी। मैंने तो 1 मिनट भी अपनी सास को और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। जब वो वहाँ से चली गई तो मैंने सुख का सांस लिया और अपने कमरे में चली गई। मेरी सास भी अपने कमरे में जा चुकी थी। धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। जाके मैंने चेहरे पे सन ब्लॉक लगाया और किचन से अपने लिए भी शरबत बना लिया। मुझे बहुत गर्मी हो रही थी, इसीलिए मेरा दिल कर रहा था कि कुछ ठंडा पीऊं। आज जब हबीब स्कूल से वापस आए तो उनका मूड बड़ा अच्छा था। मैं कमरे में उनके लिए खाना लेके गई तो उन्होंने मुझे अपने पास ही बिठा लिया, जैसे कि वो मुझसे कोई बात करना चाहते हों। समीरा, मैं सोच रहा हूँ कि आज हम दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं। कितने दिनों से हम कहीं घूमने के लिए ही नहीं गए। रोज़ की रूटीन से तो मैं थक गया हूँ। हबीब ने ये कहा तो मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हबीब ने तो मेरे दिल की बात कर दी थी। कितने दिनों से मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मैंने अभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। शुक्र है कि अब तो हबीब खुद ही ये कह रहे थे। हबीब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं खुद इस रूटीन से थक गई हूँ। कितने दिनों से हम बाहर घूमने फिरने के लिए नहीं गए। मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई तो वो हंसने लगे। अरे समीरा बेगम, तुम तो इसी इंतज़ार में बैठी थी कि कब मैं कहूँ और तुम तैयारी पकड़ो। वो अब मुझे तंग कर रहे थे। उनकी बात पे तो मुझे हंसी आ गई। हबीब, ऐसी कोई बात नहीं। मैं खुद कितने दिनों से सोच रही थी कि आपसे कहूँ। अच्छा हुआ आपने खुद ही कह दिया। वक्त तो जैसे गुजर ही नहीं रहा था। मुझे शाम का बहुत इंतज़ार था। हबीब ने कहा कि वो शाम का खाना भी मुझे बाहर ही खिलाएंगे। अभी भी शाम के 4 ही बज रहे थे। वक्त तो जैसे थम सा गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपनी ही कोई रेमेडीज़ वगैरह कर लेती हूँ। मैं जल्दी से किचन में गई और हल्दी को तवे पे हल्का हल्का सा भून लिया। ये रेसिपी भी मैंने मोबाइल पे ही देखी थी। उसमें मैंने दही मिला लिया। अब वो अच्छा सा पेस्ट बन गया तो उसे मैंने अपने मुंह पे लगा लिया। जब वो मास्क मैं अपने मुंह पे लगा के आई तो हबीब मुझे देख के हंसने लगे। हाँ 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 समीरा, तुम क्या बनी हुई हो। वो अब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं जानती थी कि वो मुझे तंग करने के लिए ऐसे कह रहे हैं। हबीब, मैं शाम को जाने की तैयारियां कर रही हूँ। मुंह धोने के बाद मैंने अपने कपड़े भी इस्त्री कर लिए और किचन का भी थोड़ा बहुत काम कर लिया। मैं अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहती थी ताकि वक्त जल्दी गुजर जाए। जैसे ही मैं कामों में लगी तो वक्त का कुछ पता ही ना चला और मगरिब भी हो गई। मगरिब जैसे ही हुई तो मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई और नहा धो के कमरे में गई। आज मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। ये वही साड़ी थी जो जहेज़ में मुझे मिली थी। आज मैं पहली दफ़ा वो साड़ी पहन रही थी। मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद थीं। आज मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपने बाल भी खुले ही छोड़े थे। अच्छे से तैयार भी हुई थी और हील्स वगैरह भी पहनी थी। मैं शादी से पहले वाले सारे शौक शादी के बाद पूरे कर रही थी। मेरा फिगर इतना अच्छा था कि साड़ी मुझ पे बहुत ही सूट कर रही थी और मेरी रंगत और शक्ल के कसीदे तो पूरा मोहल्ला ही पड़ता था। मेरी निखरी निखरी रंगत काली साड़ी में जैसे और वाज़ेह हो रही थी। मैं कमरे में बिल्कुल तैयार खड़ी थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और हबीब अंदर आते दिखाई दिए। अरे वाह भई! आज तो बेगम साहिबा ने साड़ी पहनी है। समीरा, तुम्हें सच बताऊँ तो आज मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि तुम पर से नज़रें भी हटाऊँ। मैं तो कहता हूँ आज खाने का इरादा कैंसल ही कर देते हैं, क्योंकि मेरा तो कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल कर रहा है कि बस तुम सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूँ। वो अब हँस-हँस के ये कह रहे थे, हबीब साहब, मुझे पता है मैं खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना इरादा कैंसल करेंगे। मैं घंटे लगा के बाहर जाने के लिए तैयार हुई हूँ और अब आखिरी वक्त में आप कह रहे हैं कि आप नहीं जा रहे। मैं अब बिल्कुल भी संजीदा हो गई थी। मुझे लग रहा था कि शायद वो वाकई इरादा कैंसिल कर चुके हैं। अरे बेगम साहिबा, आप तो गुस्सा ही कर गईं। मेरी ऐसी मजाल, मैं तो बस तुम्हें तंग करने के लिए ही ऐसा कह रहा था। लेकिन तुम तो गुस्से में और भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही हो। हबीब ने ये कहा तो मेरा चेहरा खुशी से दमक उठा।
حبیب: آپ بھی نا بلا وجہ ایسے ہی مجھے ڈراتے رہتے ہیں، آپ سے تو میری خوشی دیکھی ہی نہیں جاتی، آپ چلیں دیر ہو رہی ہے۔ حبیب بالکل تیار کھڑے تھے، اسی لیے کچھ ہی دیر میں ہم گھر سے نکل پڑے۔ میں نے اوپر سے چادر اوڑھی تھی، برقع نہیں پہنا تھا۔ حبیب تو کہہ رہے تھے کہ میں برقع پہن لوں، لیکن میں نے ہی انہیں منا لیا کہ میں چادر پہن کے جاتی ہوں۔ وہ مجھے بہت ہی بڑے ہوٹل میں لے گئے تھے جہاں انہوں نے بہت ساری ڈشز منگوائی تھیں۔ آج تو مجھے واقعی میں لگ رہا تھا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ میں نے آج اتنے عرصے بعد اتنا کھل کے زندگی کو جیا تھا۔ آج کا دن میرا بہت ہی اچھا گزرا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کے ہم گھر نہیں لوٹے، بلکہ حبیب مجھے گھمانے کے لیے ادھر ادھر لے گئے تھے۔ جب رات زیادہ ہوئی تو حبیب اور میں گھر کے لیے نکل پڑے۔ جب دروازے پہ موٹر سائیکل آ کے کھڑی ہو گئی تو میں آہستہ سے دروازہ کھولا، کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید اماں اور نمرہ سو گئی ہوں گی۔ لیکن جیسے ہی ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو اماں کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اپنے مصلے پہ بیٹھی دعائیں کر رہی تھیں اور نمرہ باہر چارپائی پہ لیٹ کے موبائل استعمال کر رہی تھی۔ میں فوراً سے کمرے میں گئی اور کپڑے تبدیل کیے۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں اتنی ہیوی ساڑی پہن کے تو نہیں سو سکتی تھی، اور ویسے بھی میں نے وہ آنے جانے کے لیے رکھی تھی۔ جب فریش ہو کے میں باہر نکلی تو میری ساس نے مجھے کمرے میں ہی بلا لیا۔ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ مجھے کیوں بلا رہی ہیں۔ روز کی طرح انہوں نے مجھے آج بھی انڈا ہی دینا تھا۔ میں کمرے میں جا کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے میرے سامنے ہی انڈا دم کیا اور میرے حوالے کر دیا۔ کتنے دنوں سے وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ بیٹا یہ انڈا کھا لو، اب بس کچھ ہی دن رہتے ہیں، پھر دیکھنا انشاءاللہ سے تمہاری گود ہری ہو جی۔ میری ساس نے یہ کہا تو میں نے ان کے سامنے دھیمی سی ہنسی ہنس دی اور وہ انڈا لے کے وہاں سے باہر نکل آئیں۔ آج میں نے بہانے سے وہ انڈا نمرہ کو ہی کھلا دیا۔ نہ جانے کتنے روز سے میں ایسا ہی کرتی آ رہی تھی۔ مجھے تو دن ہی یاد نہیں تھے۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ جب میری ساس مجھے وہ انڈا دیتی تو میں جا کے نمرہ کو دے دیتی۔ دن تو جیسے پر لگا کے اڑتے جا رہے تھے۔ ایک دن اچانک سے نمرہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اسے الٹیوں پہ الٹیاں ہو رہی تھیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اسے تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا جا رہا تھا۔ اسے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے۔ حبیب نے ایمبولینس کو کال کی اور ہم نمرہ کو ایمبولینس میں ہی ہسپتال لے گئے، کیونکہ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ بائک پہ بیٹھ کے جا سکتی۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ہم سب گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔ ہسپتال گئے تو ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ بھی شروع کر دیا۔ ہم سب باہر بیٹھے رپورٹس کا انتظار کر رہے تھے۔ نمرہ کی کچھ رپورٹس آنی تھیں۔ جیسے ہی وہ رپورٹس لے کے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کے ہمارے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نمرہ حاملہ ہے۔ یہ خبر تو ہم سب پہ بجلی بن کے گری تھی۔ ہر کوئی سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ نمرہ تو ابھی کنواری تھی تو وہ حاملہ کیسے ہو سکتی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر کے کمرے سے حبیب باہر نکلے تو نمرہ پہ تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید نمرہ بد کردار ہے، لیکن وہ بیچاری بچی تو کبھی گھر سے نکلی ہی نہیں تھی۔ اس کی پاک دامنی کی گواہ تو میں خود تھی۔ اب مجھے کچھ کچھ بات سمجھ آنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ان انڈوں کا اثر تو نمرہ پہ نہیں ہو گیا جو انڈے میری ساس مجھے دیتی تھی اور میں نمرہ کو کھلا دیتی تھی۔ مجھ پہ خوف طاری ہونے لگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بہت زیادہ گرمیاں تھیں، لیکن میرے ہاتھ خوف کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ میرے ماتھے پہ پسینہ چمک رہا تھا۔ اس وقت تو ہم سب گھر آ گئے، لیکن گھر میں ایک اور قیامت برپا ہو گئی۔ حبیب نے تو نمرہ کو مار مار کے ادموا کر دیا۔ میری ساس اسے چھڑوا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیچاری بچی کا کوئی قصور نہیں۔ مجھے اب خود سے گھن محسوس ہونے لگی۔ میری وجہ سے ایک معصوم لڑکی سزا بھگت رہی تھی، ایک ایسے جرم کی سزا جو اس نے کیا ہی نہیں۔ پھر اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں نے اپنی زبان کھول دی۔ میں نے وہ ساری سچائی بتا دی کہ میں کیسے اپنے فکر کو بچانے کے لیے وہ انڈا ہر وقت نمرہ کو کھلا دیتی تھی۔ میری ساس تو جیسے غم سے زمین پہ ڈھہ گئی۔ نمرہ کونے میں بیٹھی بلک بلک کے رو رہی تھی۔ حبیب کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اماں نے ایک ایسی سچائی بتائی جسے سن کے ہمارے ہوش اڑ گئے۔ اماں نے کہا کہ اس پیر نے انڈا دم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکا بھی دیا تھا جو میں ہر انڈے میں ڈال دیتی تھی، سرنج کے ذریعے۔ وہ ٹیکا صرف اور صرف شادی شدہ عورتوں کے لیے تھا، ان کے حمل کے چانسز بڑھانے کے لیے تھا اور حمل کی پیچیدگیاں ختم کرنے کے لیے تھا۔ اماں نے کہا تو میں غم سے زمین پہ ڈہ گئی۔ میری بیچاری معصوم نند بلا وجہ ہی اتنے بڑے دھوکے کا شکار ہو گئی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، آئندہ مجھے کبھی شکل نہ دکھانا۔ تمہارے گھر طلاق کے کاغذات میں بھجوا دوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ حبیب کے یہ الفاظ جیسے ہی میرے کانوں میں گونجے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ان سے منتیں کرتی رہی، لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی اور مجھے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا۔ میں اپنی ماں کے گھر آ چکی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔
अब इस वाक़ये को पूरा 1 हफ़्ता हो गया। मैंने कितनी दफ़ा ही हबीब को सुलह के पैगाम भिजवाए, लेकिन उन्होंने सुलह से इनकार कर दिया। मेरा धोखा ही इतना बड़ा था। मेरी वजह से वो मासूम बच्ची सज़ा काट रही थी। निम्रा की मोहल्ले भर में बदनामी हो गई। मैं अपने अल्लाह से किए की माफ़ी माँग चुकी थी, मगर मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था। शायद अल्लाह भी मुझसे नाराज़ था। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। मैंने ही शादी के बाद अपने शौहर को अज़दवाजी ताल्लुक़ बनाने की इजाज़त न दी। अगर मैं उन्हें इजाज़त दे देती तो आज मेरे पास भी मेरी सगी औलाद होती और मेरा हबीब से रिश्ता मज़बूत हो चुका होता। लेकिन मेरी कम अक्ली ने मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया, जिसकी सज़ा आज मैं अपने मैके में बैठ के काट रही थी। मैंने एक बेकसूर लड़की को बदनाम कर दिया, जिसका दुःख मुझे आज तक खाए जा रहा था। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी माफ़ी नहीं मिलती, और वक़्त पीछे नहीं जा सकता कि उस गलती को सुधारा जाए।